All right. So, my name is Afra Arshad. As I've been introduced, I'm a clinical and counseling psychologist and the founder of Teen Therapy Wellness. Today, we will be talking about something that's often misunderstood, that's often glamorized in our society, or uski wajah se a lot of people have started faking it as well. Today, I will give you a lot of insights and a lot of powerful tools that you can use in your real life situations, which can help you to improve your confidence, as well as you will be able to detect the fake confidence as well. It's very important to be able to know what is the real confidence and what is the fake confidence, so that you can identify it in the people around you or even in yourself as well. So before I start, I would just like to first see how many participants do we have who are struggling with confidence, or who know someone who is struggling with being confident in themselves. Maybe it's it's your class fellow, it's your student, it's your friend, or maybe it's yourself. Please just raise your hands if you are struggling with being confident in your real life. All right. Abira said that I'm struggling from the start. ठीक है. I can see a lot of hands. Ayman Haroon, Nida Said. All right. Amna. Let's see how many do we have who are basically struggling with this thing. Still, I'm struggling. Farwa is struggling. Ma'am, many class fellows are struggling that we saw when they are giving presentation. Javeria said, I have seen many around. Acha, unfortunately, I believe in my 6 years of education after my A levels, जब मैंने bachelor's किया और master's किया, तो मैंने बहुत I have learned a lot of new things, a lot of different concepts in my life. But unfortunately, ये जो basic चीजें होती हैं, how to be confident, how to present yourself, how to talk to someone, how to socialize with someone, ये चीजें कोई भी नहीं सिखाता. जबकि आई बिलीव ये बहुत बेसिक्स हैं. और येस, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं भी बहुत सारे ऐसे मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं अपनी क्लास में कि लड़कियां प्रेजेंट करते हुए बेहोश हो गई, उनको एंजाइटी अटैक आ गया, पैनिक होने लग गई. बट आर टीचर वाज लाइक कि अब आपके -10 हो जाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया. No one was concerned about what is actually going on with her, and maybe she needs some help, she needs some therapy. Well, even though psychology ka background tha, but still no one was concerned about it. So that's the reason why I chose this topic, and why I believed कि no matter चाहे हम student हो, चाहे हमारा life का initial start हो, चाहे हम professional हो, बहुत ज़्यादा हम education हमारे पास हासिल हो गई, ये वो basic needs हैं जिनके बारे में we need to talk, we need to guide, and we need to discuss. So thank you once again, Festival Applied Psychology Club, for this amazing opportunity. And let's see what we are going to talk about today. All right. So just I want one quick answer, one word answer, one line answer. What does confidence mean to you? The According to ability to you guys, overcome what? fear of crowd. Sorry, I can't hear if someone is saying something. I see some messages. All right. Marine is saying to have trust in yourself and your abilities. Going to say about Properly. you. Gigi, please go ahead. Someone is saying something, but I can't hear. Nida, you wants to say something? चलो, there are some messages. I think वो पढ़ लेते हैं पहले. All right. To say what you want, to be yourself when socializing, the ability to overcome fear of crowd, like what others would say, to tell my point of view to others clearly, to communicate, to believe in yourself. Perfect. Excellent. I think we do have a lot of people who are familiar with this thing. Perfect. All right. So the right answer is basically that
Confidence is all about trusting in your ability. It's about the belief in yourself that you can handle any sort of situation. You can navigate when there's uncertainty, and you can adapt to things when they didn't go planned. अच्छा, आई बिलीव कि जब चीज़ें प्लान होती हैं तो आई थिंक हर कोई बंदा उस चीज़ को हैंडल समहाउ कर लेता है, बट रियल कॉन्फिडेंस तब शो होता है व्हेन यू आर एबल टू हैंडल इवन दोज थिंग्स विच आर अनप्लान्ड। जो सडन हो जाए, आज आपकी कोई तैयारी नहीं है लेकिन टीचर ने आपको कहा है कि लाइबा आप आ जाएं और आपने आज आके प्रेजेंट करना है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, एंड एट दैट टाइम व्हाट लाइबा इज थिंकिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड, दैट would basically show us that is she even confident। वैसे तो लाइबा की हमेशा तैयारी होती है, लाइबा knows what she's doing, but if a teacher asks her randomly that today you will do it, तो फिर how is she coping with it? That's what real confidence is. Just a second. It's okay, it's okay. All right. True confidence is basically rooted in two things: self awareness and real competence. अच्छा, अब सेल्फ अवेयरनेस क्या है? इट बेसिकली गिव्स यू द क्लैरिटी दैट आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, एंड देन यू कोप अप विद द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड टू योर लिमिट्स। बीइंग कॉन्फिडेंट डज नॉट मीन कि आप ये कहना शुरू कर दें या ये सोचना शुरू कर दें कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस, दैट्स ओवर कॉन्फिडेंट, that's being arrogant, that's being thinking yourself like you are the perfect and you can never make mistakes। ये सोच कॉन्फिडेंस में नहीं आती। And if we talk about competence, competence is what that is built through practice, through experience, through effort। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपीरियंस होगा, सच्चे दिल से सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। I have been providing these online workshops, seminars since I think it's been more than 2 years जब से मैंने ये workshops करना start किए हैं। And if I look back, तो I can literally tell myself कि initially I was not at all this much confident। Trust me, I was not. I used to panic। मुझे रात को शायद नींद नहीं आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम जिस दिन मेरी थी प्रेजेंटेशन, और मुझे ये था कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। So that thinking like that is even, it's valid, it's justified, but believing in yourself and actually doing it, giving it a try, giving a shot is what makes you a confident person। कुछ लोग होते हैं जो इनिशियली गिव अप कर देते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मैं कैसे करूंगी। तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट्स, तो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में या कॉन्फिडेंट होने में आपको वो हर्डल क्रिएट करेगा। लास्टली, कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एरोगेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट थिंकिंग दैट यू आर, आप बहुत अपने आप को लेके यू स्टार्ट फीलिंग प्राइड इन योर सेल्फ, आप किसी और को कुछ नहीं समझते, यू जस्ट लाइक ये प्रेजेंट करेगी, इससे तो अच्छा मैं कर लेती हूँ, ये क्यों कर रही है, टीचर ने इसको क्यों कहा है, मुझे कह देती। दैट्स बीइंग एरोगेंट। You're not giving a chance to someone else, you are interrupting them, you are not letting the other person do anything। Why? Because you think no one can do it better than you। That's being arrogant। तो you have to identify, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि we are confident, क्या आपके अंदर इस तरह की कोई सोच है कि only you can do it and nobody else can do it? और इस तरह के वो लोग सोचते हैं जिनको जिनको basically they have a lot of insecurities in themselves and they are trying to hide those insecurities and they are trying to cover it up कि only I can do it, no one can do it better than me। और उनको कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैंने ठीक किया था ना, मेरी अच्छी थी ना प्रेजेंटेशन, और सबसे अच्छा मैंने ही किया था, और कोई भी नहीं मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकता। दे नीड कांस्टेंट वैलिडेशन। लेकिन जो कॉन्फिडेंट बंदा होगा, जो रियल कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, वो ग्राउंडेड होगा, उसको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, वो बल्कि आपसे फीडबैक लेगा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई बी बेटर, टेल मी अबाउट इट। दैट्स वेयर द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम। आई होप आपको बड़ा मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट कॉन्फिडेंस रियली इज। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, you can do that। All right, let's move on then।
अच्छा, अब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में, तो मैंने बहुत जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी एलिमेंट देखा, सेल्फ एस्टीम की भी बात कर रहे थे, सेल्फ वर्थ की भी बात कर रहे थे। तो आई थॉट दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज को भी पहले क्लियर कर लें कि व्हाट डज इट मीन टू बी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। बिकॉज सरप्राइजिंगली, इवन टू माई सरप्राइज, ये तीनों टर्म्स डिफरेंट है। They do interconnect with each other, but it's different to be confidence, to have self confidence, and to have a better self esteem. ये तीनों चीजें different है. So let's talk about that first. अच्छा जी, कॉन्फिडेंस के बारे में पहले बात करते हैं। जैसे वी हैव डिस्कस, इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, इन समथिंग, अ प्रोसेस, एन आउटकम, उस चीज के ऊपर बिलीव रखना, दैट्स व्हाट कॉन्फिडेंस इज। इट्स अ जनरल सेंस ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ और इनटू समवन एल्स। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं विच आर नॉट कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन देयर फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी फ्रेंड का मुझे पता है कि वो कर सकती है। सो यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट अदर पीपल एज वेल। ठीक है, जिसमें आप कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे यू स्टार्ट ट्रस्टिंग इन योर एबिलिटी, ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ, बट इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से यू फील कॉन्फिडेंट। कोई ऐसा परफॉर्मेंस आपने की जो बहुत अच्छी हो गई, सो नाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं वो परफॉर्मेंस या वो प्रेजेंटेशन फिर से दे सकता हूँ। ठीक है, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन। बस ये एक मेजर फर्क है दोनों में, कि कॉन्फिडेंस इज अबाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन। आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो इंटरनल है। इट्स अ बिलीव इन योर सेल्फ विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल प्रूफ। क्या मतलब है? कोई ऐसी न्यू चीज, ठीक है, कोई ऐसी न्यू चीज जो आपने की हो, जो आपने जो आपने पहले कभी नहीं की हो। जस्ट अ सेकेंड। All right. So as I was saying that self-confidence is independent of external validation. जैसे कि कोई आपको कुछ जॉब आपने देखी है इंटरनेट पे, और वो एक ऐसी जॉब है जो शायद पहले आपने कभी अप्लाई नहीं किया हो, बट स्टिल यू आर अप्लाइंग इट। यू वांट टू गिव इट अ ट्राई कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, और अगर मैंने कर लिया तो आई विल लर्न फ्रॉम इट। मैं इंटरव्यू पे चली जाती हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज व्हाट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम आप उस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, बट यू आर स्टिल डूइंग इट। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी वैलिडेशन, एनी परमिशन, एनी अप्लॉज। आपको किसी 10 लोगों की तालियों की जरूरत नहीं है टू डू समथिंग। एंड इफ यू एक्चुअली डोंट नीड इट, देन यू आर हैव रीच्ड द लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। जी, so sorry for that. All right. And now moving on to the third part, that is self esteem. ठीक है, आई होप आपको कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता लग गया है। इसका बस ये होता है कि कॉन्फिडेंस जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और नाउ वी हैव सेल्फ एस्टीम विच इज मोर फाउंडेशनल। मतलब इट्स योर ओवरऑल सेंस ऑफ योर सेल्फ वर्थ।
सेल्फ वर्थ क्या है? हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ, हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, हाउ मच यू बिलीव इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस है, ठीक है, बिलीव है, लेकिन कितना बिलीव है? क्या आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? अच्छे मार्क्स आ गए तो सेल्फ एस्टीम अच्छी है, अच्छे मार्क्स नहीं आए, फेल हो गए तो सेल्फ एस्टीम डाउन हो गई, ठीक है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सॉरी, वो टिकता है, वो एक जगह टिका रहता है, वो शेक नहीं होता। अगर आपकी जो शेक हो रही है ना चीज, वो आपकी सेल्फ एस्टीम है, ठीक है। आई बिलीव सेल्फ एस्टीम इज योर इमोशनल बेस्ड, जो कभी भी शेकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वो शेकी है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फ्रेजाइल है, वो जल्दी से टूट सकता है। वो किसी ने कुछ कह दिया आपको, सेल्फ एस्टीम हर्ट हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर गया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर सेल्फ एस्टीम। अच्छा, अब सेल्फ एस्टीम अपने आप को वैल्यू करना, आई थिंक इट्स इजी, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कि आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी भी फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया या किसी से कोई लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, जिंदगी में कोई खुदा ना खासा कुछ भी इस तरह का इवेंट हो गया, तो यू स्टार्ट, सबसे पहले आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं। यू फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे में कोई गलती है, मेरे में कोई कमी है जिसकी वजह से ये हुआ। दैट शोज दैट आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, ठीक है। So, like I said, कि ये तीनों जो concepts हैं, they are very much related to each other, and each plays a very important role in our life. That how we experience that incident and how we express your inner strength. All right. Any questions? I think we do have some questions. All right. Azmat is saying that सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ वेरी, ये भी आपस में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आई बिलीव इट्स द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग योर फुली पोटेंशियल, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहाँ पे आप रियलाइज अभी कर रहे होते हो कि हमारी क्या क्या पोटेंशियल है, एंड वंस यू रियलाइज दैट पोटेंशियल, देन यू शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? आपका अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिलीव है, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपकी वो जो एबिलिटीज है ना, वो क्या है, वो आपने रियलाइज कर लेनी है। और जब आपको रियलाइज हो जाएगा, दैट्स व्हेन यू शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। फिर उसमें ये होता है कि जो आपको पता चल गया कि ये मेरी एबिलिटी नहीं है या ये चीजें मैं नहीं कर सकता, फिर यू डोंट शो दैट पार्ट ऑफ यू, यू ओनली शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें भी काफी डिटेल में बात हो सकती है, बट अभी मैंने आपको एक जनरल समरी दी है। All right, let's move on to what are the factors that can affect our self-confidence. Any questions so far? Anything? Anyone wants to say something? What's the difference between self-esteem and self-image? अच्छा जी, self-image सिंपल सी बात है। self-image वो है जो आप खुद को जब देखते हैं तो हाउ डू यू फील, ठीक है। If you look at yourself in the mirror right now, do you feel you are enough for yourself? Do you feel a failure? Do you feel like I have not done anything in my life? ये आपकी सेल्फ इमेज होती है। जो इमेज आपने अपने बारे में रखी हुई है, उसी बेसिस पे आप दूसरों को परसीव करते हैं। एंड लाइक आई सेड, सेल्फ एस्टीम की जैसे हमने बात की, वो है कि हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ, हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, हाउ मच यू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। और वो कभी कभार चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स, बट वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेल्फ इमेज उन लोगों की अच्छी होती है जिनकी सेल्फ एस्टीम स्टेबल होती है। जब आपकी सेल्फ एस्टीम स्टेबल होगी तो सेल्फ इमेज भी नहीं खराब होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट माई बेस्ट एबिलिटीज स्टिल। अच्छा, द वे, ओनली वे टू फाइंड योर बेस्ट एबिलिटीज इज टू डू समथिंग। करके देखो, कुछ नहीं होगा। एक दफा फेल हो गए, दूसरी दफा फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, यू विल लर्न अ लॉट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैं भी, आई बिलीव, जहाँ पे भी आज मैं खड़ी हुई हूँ ना, इवन टुडे अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, तो मैं उसको ये कहूँगी कि मैं अभी भी सीखना चाहती हूँ, मैं अभी भी लर्न करना चाहती हूँ। मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज दे, मुझे कोई न्यू टास्क है जो मैंने पहले नहीं किया।
आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो एबिलिटीज ऐसी पता चलती हैं जब आप करते हो, जब तक आप कर रहे हो करते रहो और सीखते रहो और सिखाते रहो। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? Can confidence be learned or is it an inborn trait? Confidence can definitely be learned और आज हम वही बात कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी दूंगी जिससे आप एक्चुअली में यू कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। तो ये कोई इनबॉर्न ट्रेट, कुछ लोग इन पैदाइशी भी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं होते वो हमेशा सीख भी सकते हैं। अच्छा, ओ सॉरी। ऑलराइट, now we are going to talk about, just a second, I can't see Google Meet. All right, now we're going to take a deep look at what actually shapes our self-confidence. We are going to explore some internal factors and then we will look into some external factors. Internal factors में सबसे पहली चीज है self perception. Self perception क्या है? It's the story that you tell to yourself about who you are. आप खुद कौन हो और खुद को क्या बताते हो, दैट्स सेल्फ परसेप्शन। इसमें आपकी इंटेलिजेंस, आपकी वर्थ, आपकी एबिलिटीज, सारी चीजें आती हैं और इसी में ही आपकी नेगेटिव बातें भी आती हैं। अच्छा, मैं अब एक सेंटेंस बोलूंगी, जस्ट लेट मी नो, यू कैन रेज योर हैंड और जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि कितनी दफा आप लोगों ने ये सेंटेंस अपने आप को बोला है। एज अ स्टूडेंट भी मैं उसको आप लोग रिलेट कर लें और या एज अ प्रोफेशनल भी इसको रिलेट कर लें कि किसी ने कोई टास्क आपको दिया है, कुछ भी ऐसी कोई चीज कही है करने को, या आपके सामने एक चीज आ गई दैट यू हैव टू डू इट एंड यू टोल्ड योरसेल्फ दैट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डू दिस, ये चीज मेरे से नहीं हो सकती। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सेड दिस थिंग टू योरसेल्फ? जी, आई सी अ लॉट ऑफ हैंड्स। जी, several times. Never ever. Excellent, Farah. Very good to see that there are some people जो इस तरह के statements नहीं use करते. Several times, sometimes I can do this. I'm the best. I motivate myself. Very good. Excellent. Sometimes, several times. अच्छा. Very good. Farah, I really liked your answer because it's something very different from other people. Would you like to share something that how have you come to this conclusion कि कोई अगर आपको कोई टास्क कहे या कोई काम कहे करने को और आपने कभी भी इस तरह से नहीं कहा that this is something I cannot do. Would you like to share some insights with us? जन्नत ने भी कहा I've never said that. I want to know क्या strategies आप लोगों ने अब तक अप्लाई की हैं या any insight that you want to share with us? कि क्यों नहीं कभी इस तरह से कुछ कहा? जन्नत भी बता दें या फरा ने कहा है या कोई भी ऐसा बंदा जो शेयर करना चाहे कि वी डोंट से दीज थिंग्स। जी, नो वन वांट्स टू शेयर इट।
Just focus and learn how to plan execution. ये बेटा, चलो ठीक है। अच्छा, She raised the hand. फरहा ने कहा है आई यूटिलाइज माई फुल पोटेंशियल एंड कलेक्ट माई एनर्जी एंड कहाँ चला गया जी फरहा said I utilize my full potential and collect my energy in learning experiences to execute the things. Very good, excellent. Ibrahim said I believe that I can do it. Marine said I think their perception of failure and mistake could also be a factor. बिल्कुल सही. Appreciation from colleagues. Maybe it's because of the way they were brought up. बिल्कुल सही. Perfect. ठीक है. So now we know कि कुछ अगर कोई ऐसा my father believes in me. That's excellent. Perfect. ठीक है. अब ये चीजें आपके सामने खुद ही क्लियर हो गई हैं कि एक्सक्यूज मी हम इस तरह की चीजें इस तरह के सेंटेंसेस अगर अपने आपको कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं और जो लोग नहीं कह रहे वो क्यों नहीं कह रहे एंड दैट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ परसेप्शन. आपका अगर इंटरनल फैक्टर की हम बात करें तो जो बातें जो सेंटेंसेस हम खुद को कहते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस या बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट पीपल हैव टोल्ड अस उनकी बेसिस पे हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कम या ज़्यादा हो जाता है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट बिलीव सिस्टम भी इसमें यही सेम चीज़ आ जाती है कि बचपन से सिखाया गया है कि मिस्टेक्स का मतलब है फेलियर. अगर आपने कोई गलती कर दी है मीन्स यू हैव फेल्ड, यू आर अ फेलियर इन योर लाइफ. तो जो लोग इस तरह के बिलीव सिस्टम से आते हैं फिर वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और वो एक मिस्टेक की बेसिस पे एक मिस्टेक की बुनियाद पे इस चीज के ऊपर कंक्लूड कर लेते हैं कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग. कोई भी हमें कोई चीज देगा तो सबसे पहला ख्याल ये आएगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि सारी जिंदगी हमेशा यही सुना है कि तुम ये नहीं कर सकते और तुमने वो गलती की थी तो कभी भी दोबारा तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस. वो भी आई थिंक उसी में से आ जाता है. आपकी जो भी अचीवमेंट्स थी फेलियर्स थे इनकरेजमेंट कब कब किया क्रिटिसाइज कब कब किया आर कॉन्फिडेंस इज बेस्ड और इट्स शेप्ड बाय व्हाट वी हैव सर्वाइव्ड इन आवर लाइफ. कभी कभार एक सिंगल पेनफुल एक्सपीरियंस ह्यूमिलिएशन इन स्कूल या पेरेंट्स ने कभी कुछ कह दिया इट कैन ओवरशैडो ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस दैट वी हैव डन इन आवर लाइफ. सो हमारा जो कॉन्फिडेंस है इस तरह से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को. चाहे उसमें आप जितना मर्जी कोशिश कर लें टू बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट बट अगर इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर जाएंगे तो फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा फ्रेजाइल रहता है. Now let's move on to the external factors. अच्छा जी, सबसे पहले हमारा फीडबैक. अच्छा, फीडबैक इज समथिंग जो मैं तो हमेशा ही लेती हूँ चाहे मैं जितना मर्जी चाहे मेरा फर्स्ट डे थी वर्कशॉप की. जो लोग मुझे जानते हैं जिन लोगों ने मुझे पहले भी सुना हुआ है दे वुड नो आई ऑलवेज टेक फीडबैक. मुझे फीडबैक बहुत अच्छा लगता है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बिकॉज इट हेल्प्स मी टू लर्न अबाउट माई सेल्फ वर्थ. ठीक है. एंड इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ. और मैं कभी भी मैं भी और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि जब भी कोई नेगेटिव फीडबैक दे कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको हमेशा एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी यूज करें. ठीक है. कोई अगर आपको कुछ कह रहे हैं ना कि आज की प्रेजेंटेशन में मुझे ये चीज आपकी नहीं अच्छी लगी कीप दैट मेक अ नोट ऑफ दैट एंड मेक श्योर कि वो चीज नेक्स्ट टाइम ना हो और जो लास्ट प्रेजेंटेशन थी या लास्ट वर्कशॉप थी या लास्ट क्लास था उससे बेहतर हो. ठीक है. कभी भी क्रिटिसिज्म को लेके नहीं बैठते हमेशा उससे सीखते हैं. ठीक है. देन वी हैव सोशल सपोर्ट जहाँ पे वी आर फैमिलीज आर पेरेंट्स. जैसे किसी ने कहा कि माय फादर बिलीव इन मी दैट आई कैन डू इट सो दैट्स अ सोशल सपोर्ट. कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं कोई ऐसी आपको आई स्टिल रिमेंबर आई डन माई बैचलर्स फ्रॉम क्रिएट कॉलेज लाहौर से. तो मेरी जो टीचर थी मिस ज़ारा हरून आई ऑलवेज लाइक टू मेंशन हर कि शी टोल्ड मी आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अफरा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जो भी काम करती है वो दिल से करती है. और ये बात मुझे आज तक याद है कि अब मैंने उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आई वाज न्यू टू एवरीथिंग आई वाज लर्निंग आई वाज अडॉप्टिंग. अब मैंने उस सेंटेंस को किस तरह से रख लिया कि अफरा काम जो भी आए उसको करना तो है ही लेकिन दिल से करो. कोई भी काम जबरदस्ती ना करो दिल से जान ना छुड़वाओ. बस
कि ठीक है अब कह दिया तो करना है, डोंट डू दैट। जो भी काम करना है ना दिल से काम करो। जब आप दिल से काम करते हैं ना उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ये बात लिख लें, जो काम आप दिल से करेंगे, सही नीयत से करेंगे और फुल सच्चाई से करेंगे ना, उसका आपको आउटकम हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। एंड देन वी हैव सोसाइटल नॉर्म्स, जो ये एक इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारे ऊपर डाली जाती हैं थ्रू आर सोसाइटीज, क्योंकि सोसाइटी ने कहा है तो हमें ये चीज करनी ही करनी है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी, उनकी नजरों में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि लड़का जब तक इतनी सैलरी उसकी नहीं होगी ना वो हमारी नजरों में सक्सेसफुल नहीं है। वो बेचारा सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन कभी भी वो लोगों की नजरों में उस लेवल तक नहीं आ पाता जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी मेंटेन नहीं हो पाता। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि लड़की की जब तक शादी नहीं होगी वो एक कामयाब औरत नहीं बन सकती। उनकी नजरों में मैरिज इज व्हाट मेक्स ए वुमन सक्सेसफुल। तो वो लोग कभी भी, आप उन लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और जो लोग इन बातों में घुस गए हैं ना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है टू बी एबल टू हैव अ गुड सेल्फ इमेज, टू बी एबल टू थिंक गुड अबाउट देमसेल्व्स। तो आई रियली वुड वांट कि हम इन सोसाइटल नॉर्म्स को भी खत्म करें, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ने नहीं देती हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, आई सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस, तो अभी हम वो पढ़ लेते हैं पहले। कहाँ गए मैसेजेस? ऑलराइट, व्हाट टू डू व्हाट टू डू आफ्टर कंसिस्टेंट फेलियर, कंटिन्यू करना चाहिए। आप ये देखिए कि कंसिस्टेंट फेलियर आप क्या किस वजह से रहा है। जो काम आप कर रही हैं क्या वो दिल से कर रही हैं, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या रीजन है क्यों नहीं कर पा रही हैं। और हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मे बी दैट थिंग इज नॉट मेड फॉर यू, तो मे बी यू ट्राई समथिंग एल्स। लेकिन एटलीस्ट तब तक ट्राई करें जब तक आपको फुली पता ना हो कि हाँ आई हैव डन इनफ, नाउ नाउ आई नीड टू मूव टू समथिंग एल्स। ठीक है, ये ना हो कि एक दो दफा ट्राइज में आपको हो और फेलियर आ क्यों रहा है ना, व्हाट इज दैट थिंग दैट स्टॉपिंग यू टू अचीव दैट थिंग, उसको पहले आइडेंटिफाई करें। Alright, Komal is saying, what steps can we take to stop ourselves and not let anybody control our confidence? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बाहर जाके बात करो। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, इट्स समथिंग वेरी इंटरनल कोमल। Why would you let anyone else control it at first place? पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है ना कि क्यों आप, ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी इंटरनल है, तो कैसे आप किसी और को कंट्रोल करने की इजाजत दे रही हैं। Secondly, if you are positive about yourself, if you trust in your ability, then no one can shake your confidence. ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को जब देखती हूँ इन द मिरर या अपने बारे में कोई मुझसे पूछता है कि अपने बारे में बताओ, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ बिकॉज आई बिलीव आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन। बट स्टिल देर आर सो मेनी पीपल अराउंड मी जो मुझे ये कहते हैं कि अफरा क्या कर रही है अपनी लाइफ में, शी इज वेस्टिंग हर लाइफ। साइकोलॉजी पढ़ के उसने क्या कर लिया जिंदगी में, वो आज भी मेरे से खुश नहीं है और वो कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो अगर मैं उन लोगों की बातों को लेकर बैठ गई तो फिर तो मैं जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो वी हैव टू ट्रस्ट इन आवर ओन सेल्फ। रिदा शहजाद है कुछ कह रही हैं। अच्छा, हानि कह रही है, मे बी द थिंग you are after is not meant for you, this is for you, Sadia. Try doing something you know you can do and are interested in. ठीक है, आई कैन डू इट, ये माइंड में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। जिम्मेदारियां इतनी हैं कि थक जाते हैं मगर काम खत्म नहीं होता, दिल करता है दिल से करूं मगर रीथिंकिंग का सांस लेने का टाइम नहीं देते। अच्छा जी, definitely it's a part of life, we have to manage through it. Fiza is saying that can you please explain कि हमारे childhood experiences और पेरेंट्स रिलेशनशिप हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट कर सकते हैं, व्हाट पेरेंट्स शुड अवॉइड। अच्छा, ये तो फिर एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हो गया कि पेरेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हमारे चाइल्डहुड, सॉरी क्या था, हमारे चाइल्डहुड कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को हाँ जी बिल्कुल, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जो पेरेंट्स की रिलेशनशिप है वो हमारी कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। व्हाट पेरेंट्स शुड अवॉइड, पेरेंट्स नीड टू गिव देम टाइम,
Parents need to encourage them where it's required and stop criticizing your parents in public places. फुप्पो के सामने, चाचा के सामने, दादी के सामने बैठ के अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। इवन तो आप लोग मजाक में कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन बच्चे उसी टाइम पे बच्चे की जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ने का टाइम है ना, वही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट पेरेंट्स शुड अवॉइड। मैम, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, उन्हें खुद को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? आई विल टॉक अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, मैं भी बात करने लगी हूँ। मैम, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। जी सबा, जिस एज में आप हैं, आई थिंक उस एज में किसी का भी पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन हमें कुछ चीजें हैं जो दिल नहीं भी कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने फायदे के लिए करनी पड़ती है। अच्छा जी, अभी हम लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, अच्छा जी, एक मिनी एक्सरसाइज है कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज रखी हुई आप लोगों के लिए। इट्स टोटली योर चॉइस इफ यू वांट टू डू इट, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप लोग ये करेंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली करना क्या है आपने, अभी जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स की सारी बात की है, ठीक है। इट विल टेक जस्ट 5 minutes, बट आई थिंक आप लोग इफ यू हैव नोटबुक्स विद यू या मोबाइल फोन्स हैं तो वो निकाल लें, ठीक है। एंड आपने क्या करना है कि एक सर्कल बनाएं, ठीक है। सेंटर में लिखिए माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड देन स्टार्ट मेकिंग द एरो जिस तरह से मैंने लिखे हुए, एक साइड पे फीडबैक, सपोर्ट, सोसाइटल नॉर्म्स, देन सेल्फ परसेप्शन, बिलीव्स इन पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट टू ईच वन, write one example from your own life that has impacted your confidence in that area, ठीक है। अगर, क्योंकि जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन से लोग हैं जो कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रहे, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि मुझे बड़े टाइम से मैं आई एम नॉट एबल टू गेन इट, और बहुत मसले हैं, बड़े पुराने टाइम से आई एम ट्राइंग टू गेन कॉन्फिडेंस, नहीं हो पा रहा है। तो आई वुड एक्चुअली वांट यू टू नो, टू राइट डाउन द रीजंस व्हिच हैज impacted your confidence in that area, and just take 5 minutes, ठीक है। 9:46 हो रहे हैं, 9:50 पे आई बी बैक। 4 minutes आपके पास हैं, आप उसको सोचें और एक एक एग्जाम्पल आपने लिखनी है। फीडबैक, किसी ने कोई नेगेटिव फीडबैक कभी दिया हो, सपोर्ट नहीं कभी मिला, फैमिली ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, बिलीव क्या है आपका, सेल्फ परसेप्शन क्या है, ठीक है। Just take quick 4 minutes and then I will be back. If anyone wants to share, वो फिर आप मुझे उसी टाइम पे शेयर कर दें, या it's totally up to you. And Sabha and Komal, do you guys want to say something? I see your hands have raised. Yes, Sabha, go ahead, please. क्या कहना चाहती हैं आप? You want me to motivate you to study? मैं पढ़ती हूँ तो नींद आ जाती है बेटा, हम सबका यही हाल है। हम भी जब पढ़ते थे हमें भी बहुत नींद आती थी। मैं तो क्या करती थी, जब नींद नहीं ना आ रही होती थी तो मैं किताब खोल के बैठ जाती थी, क्योंकि उसके बाद बहुत ही अच्छी नींद आती थी। लेकिन ये है कि हमने अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। इस चीज़ के ऊपर भी ज़्यादा बहुत सारी बात करनी चाहिए कि तालीम क्यों ज़रूरी है। सबा, आप चैट बॉक्स में लिख दें अगर कुछ कहना चाहती हैं तो। फरवा इज सेइंग हाउ टू कंट्रोल पैनिक अटैक व्हेन वी टॉक टू समवन, मतलब आपको कुछ आता भी हो बट फिर भी आप ब्लैंक हो जाते हैं। जी बेटा, इसको सोशल एंजाइटी कहते हैं, एंड दैट्स आल्सो टोटली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। बेसिकली जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके जहन में किस किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, और वही ख्यालात आपको बात नहीं करने देते। इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन यू आर इन, इट्स अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। दैट्स ऑल्सो काफी लंबी इस पे बात हो जाएगी। ऑलराइट, वी आर लेफ्ट विद 2 minutes। 2 minutes हैं भी आप लोगों के पास, लिखिए, सोचें, और फिर आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। इम्पोर्टेंट है, कर भी लेती हूँ, पर नींद को सलाम है।
All right. I hope that you all have written something. And if anyone would like to unmute themselves and maybe share it with us. Mama, what? Hi, anyone would like to share their experience? Ma'am Afra is waiting. अबीरा आप अनम्यूट करके बोल दें. All right. Abira has said something. I'm just going to read it out loud. Ma'am, 2 years ago, I have weak self perception and I'm struggling to learn myself. And I'm afraid to speak in public and also public speaking. But now I am learning my skills and what I can do. Excellent. Proud of you. Due to the support of my parents, especially my father, who always gives me the opportunity and always motivates me, even in my small achievements. I also received many negative feedback, like why you are doing social work and why you are wasting time on people you don't know. मैम, कुछ बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया जाता है और वो किसी की तमीज नहीं करते, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं अभी आती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करती हूँ. Thank you so much, Abira, for sharing that with us. And definitely, like, said कि support system बहुत important है. और जो लोगों की बातें हैं वो they will always criticize you. वो कभी भी आपको appreciate नहीं करेंगे. तो उनकी बातों को कभी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए. Samavia has said, past experiences affect my confidence. Intermediate result was not that good. Due to this family criticism, का तुम कर ही नहीं सकती, etc. After this, my self perception changed. इंटर तक कॉन्फिडेंस था खुद पर कि कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कर लूं. कर तो लेना ही है मैंने. करंटली आई लूज दिस कॉन्फिडेंस. देखिए, अब उसकी रीजन हमने बेसिकली बतानी है कि आपके इन सारे एरोज में से कौन से एरो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, नेगेटिव वाले या पॉजिटिव वाले. ठीक है. और अगर नेगेटिव वाले स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उनको हमने वीक करना है और जो पॉजिटिव वाले को स्ट्रॉन्ग करना है. इंटर से पहले जो आपकी सोच थी समाविया, वही सोच को वापस लेकर आना है. ठीक है. फैमिली ने क्रिटिसाइज किया, ओके, ठीक है, लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म के बेसिस पे नहीं हमने आगे जिंदगी में चलना. अगर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इंटर में अच्छे मार्क्स नहीं है, अब मैं उनको करके दिखाऊंगी, एंड देन आई विल मेक देम प्राउड. बट उससे पहले बी प्राउड इन योर सेल्फ समाविया. आप दूसरों को कभी भी खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश ना हो. एंड नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू. कोई भी, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की. ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है. फरवा, इंटरव्यू टाइम पे ब्लैंक होना, पैनिक होना जब कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो इसको लास्ट कवर किया जाए, कैसे कवर किया जाए? देखिए, इंटरव्यू पे अगर आप ब्लैंक हो रहे हैं मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. यू हैव समवेयर, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है अपनी एबिलिटीज के ऊपर, जिसकी वजह से आप ब्लैंक हो रहे हैं. फरवा, अगर आपका इस तरह का, मैं आपको छोटी सी, जो लोग इस तरह के सिचुएशन में होते हैं उनके लिए छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर आप बात करें जो आपका फेवरेट है या जिसके जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है. योर फेवरेट मूवी, योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट टूर, कोई एक्सपीरियंस था, कहीं ट्रैवल किया, उसके बारे में शीशे के सामने खड़े होकर बात करें और फिर अपना कॉन्फिडेंस का लेवल देखें. यू विल सी अ डिफरेंस इन यू. Why? Because you believe in what you're saying. You enjoyed that moment. You know about the movie. You have watched the movie 100 times and you believe in it, what you are saying. आप कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे. लेकिन अगर मैं अभी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछूं जो आपको नहीं पता होगा और आपको डाउट होगा, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड एंड यू डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू हैव रिटन इन योर सीवी और इन योर एबिलिटीज. तो उसके ऊपर देखने की जरूरत है. इन फैमिली हो वरना कर देती अनम्यूट. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Jana said, my husband shattered my confidence like I can cook in bulk for more than 100 people at a time.
Excellent. I'm so proud of you if you can actually do that. And but he says I can't cook. That made me very inconfident. बस आपने जन्नत नेक्स्ट टाइम खाना जब आप बनाएंगे ना, आपने अपने हस्बैंड को नहीं देना खाना, उनसे कहना कि आप बाहर से ऑर्डर कर दें, बिकॉज मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। ठीक है, ये हस्बैंड जो है ना, इनके लिए आपने नहीं आप खाना बना रही, आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर रही हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रही हैं। और अगर आपको पता है कि आप अच्छा खाना बना रही हैं एंड इट डज टेस्ट गुड, तो आपके हस्बैंड को आई थिंक टेस्ट बर्ड्स का एक दफा चेकअप कराने की जरूरत है, क्योंकि उनकी बातों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड हो रहा है। एंड आई रेजोनेट विद यू, आई बिलीव इन यू व्हेन यू से थिंग्स लाइक दैट, कि ऐसा होता है। एक चीज जो आप बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई भी एक बंदा कह दे कि ये अच्छा नहीं है, तो फिर यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। लेकिन यहाँ डाउट ही तो नहीं करना, ठीक है। एंड आई एम श्योर दैट यू कैन कुक एंड यू डू कुक वेरी वेल। और यही कॉन्फिडेंट आपने अपने अंदर भी रखना है कि आई नो दैट आई कैन डू इट। ऑलराइट, thank you everyone, thank you each one of you who shared things with us today. अभी भी काफी चीजें रहती हैं कवर करने वाली, so let's just move on. All right, importance of boosting self confidence, ठीक है जी, क्यों जरूरी है? आंसर बहुत सिंपल सा है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपके, इट्स नॉट अ ट्रेड जो आप बिल्ड इन ट्रेड नहीं है। कुछ लोगों, देर आर सम पीपल जो पैदा ही बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उनमें भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं उस चीज को मेंटेन करने में, ठीक है। बीइंग नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। आपकी विद टाइम यू ग्रो, यू लर्न, you meet a lot of people, you experience a lot of things in your life, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है। All right, so the first one is empowerment for personal growth. Like I said, कि आपको अपने comfort zone से बाहर आना है, ठीक है। If you are confident in yourself, you believe in yourself, you would love to come out of your comfort zone. You allow yourself to try new things, to do experiment, and even if you fail, you learn from it, ठीक है। डेफिनेटली पर्सनल सक्सेस की अगर मैं बात करूं, सॉरी प्रोफेशनल सक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ में अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वंस दे विल कम इनटू देयर प्रोफेशनल लाइफ, तो वहां पे टैलेंट सिर्फ काफी नहीं होता, ठीक है। आपको टैलेंट के साथ साथ अपने एबिलिटीज के ऊपर बिलीव भी होना चाहिए, ठीक है। जब आपको यू नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपके अंदर टैलेंट है, नहीं नॉट यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, बिहाइंड द लैपटॉप आप सब कुछ अच्छा कर लेते हो, बट ऑफिस में जाके या प्रोफेशनल लाइफ में जाके जब आपको कहा जाता है टू प्रेजेंट योर वर्क, देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, यू स्टार्टेड हेसिटेटिंग कि मैं कैसे बात करूं, जबकि वो काम आपने खुद ही किया होता है, ठीक है। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड डेफिनेटली आपके सोशल इंटरेक्शंस पे भी ये काम करता है, बिकॉज व्हेन यू आर सिक्योर इन योरसेल्फ, तो फिर आपको कोई भी कॉन्वर्जेशन को डोमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, या आपको यू डोंट हैव टू श्रिंक द अदर पर्सन टू मेक योरसेल्फ फील कि यू नो लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आप अगले की भी पहले बात सुनो और फिर अपनी भी सुनो, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस नजर आता है इस जगह पे, जब आप अगले को भी बोलने देते हो और फिर खुद भी बोलते हो। ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में भी होंगे, कहीं ना कहीं किसी ने देखा होगा, जो कभी भी किसी को बात नहीं करने देता। दे जस्ट वांट टू टॉक टॉक टॉक, और वो अगर कोई बात भी करते तो उसको कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, लेट मी टॉक, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। यहाँ पे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड सवाल भी थे, चलो उनको भी देख लेते हैं अभी, पहले लेट्स जस्ट मूव ऑन। अच्छा, द साइकोलॉजी बिहाइंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो हमारा मेन एजेंडा है कि आई एम श्योर अब तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, कि हमें पता लग गया कॉन्फिडेंस क्या है, ये क्यों मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है साइकोलॉजिकली एंड न्यूरोलॉजिकली, ठीक है। सबसे पहला है रोल ऑफ सेल्फ टॉक एंड इनर नैरेटिव। जैसे मैंने बात की, द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ ऑन द डेली बेसिस, रोजाना की जो गुफ्तगू आप अपने आप से करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, इट शेप्स योर आइडेंटिटी।
एक दफा भी कोई नेगेटिव बात अपने बारे में कर दी ना आपने तो वो रहती है, इट स्टेज विद यू फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, ठीक है, जिसको साइकोलॉजिकल टर्म में हम इनर नैरेटिव कहते हैं। और ये एक मेंटल स्क्रिप्ट होती है जो आपका बेसिकली इट्स रनिंग द शो। अगर आज आई वांट ऑल ऑफ यू, स्पेशली आफ्टर दिस सेशन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ कि मेरी जो मेंटल स्क्रिप्ट है उसमें किस तरह की बातें होती हैं। क्या आप इस तरह से बातें करते हैं कि आई ऑलवेज फेल इन माई स्टडीज और इन माई लाइफ, आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। अगर इस तरह की बातें तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो बातें सच है, ठीक है, लेकिन बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट रेपिटेशन तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। उसी तरह से अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बातें कहेंगे तो देयर विल बी अ टाइम, आज नहीं कल नहीं, मे बी आफ्टर अ वीक, यू वुड एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इन दोज थिंग्स व्हिच यू टेल योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस, कि आप अपने आप को अच्छी बातें कहें। आज आपको फनी लगेंगी ये बातें, लेकिन एक टाइम आएगा कि जहाँ पे योर ब्रेन विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज स्टेटमेंट्स एज फैक्ट, एंड इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स, ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दैट। क्योंकि जब भी हम मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो इनर वॉइस हमारी क्या कहती है? सबसे पहली स्टेटमेंट क्या हमारे जहन में आती है कि मैं तो हुई फेलियर, मैं तो हुई निकम्मा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर यही स्टेटमेंट आप बार बार बोलते रहेंगे तो यू डोंट नीड अ मिस्टेक टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर अ फेलियर। वो फेलियर आपके जहन में इम्प्रिंट हो चुकी है बात। सो द वे यू टॉक टू योरसेल्फ इट शेप्स अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नाउ वी हैव इम्पैक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सोशल कंडीशनिंग। डेफिनेटली अभी हमने इस चीज के बारे में काफी बात की कि जो भी आपकी हिस्ट्री होती है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट हाउ यू आर फीलिंग टुडे। बचपन में कंपैरिजन था, कजिन्स के साथ कंपैरिजन था, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज हो रहे थे, डिसमिस हो रहे थे, निग्लेक्ट हो रहे थे। तो डेफिनेटली आज जब आप बड़े हो गए हैं तो यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो जब हम थेरेपी करते हैं, स्पेशली जब हम थेरेपी करते हैं इस तरह के क्लाइंट्स की, तो हम उनके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले बात करते हैं और उसको हम पॉजिटिव वे में रिफ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टुडे, आज क्या हो रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप वही कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ 10 साल 20 साल पहले किया था। उन्होंने तो चलो कर दिया, लेकिन आज भी आप वही अपने आप के साथ कर रहे हैं। तो हमारा पास नहीं बदल सकते, बट आज जो आपके साथ हो रहा है वो बदला जा सकता है, ठीक है। फाइनली वी हैव ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम, जो हमारा डोपामीन है। कॉन्फिडेंस जो है ना वो सिर्फ एक माइंडसेट की गेम नहीं, ठीक है, वो एक केमिकल प्रोसेस भी है। हम जब कोई रिस्क लेते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, और इसमें हम कामयाब हो जाते हैं, तो हमारा वी एक्चुअली फील गुड अबाउट इट, राइट। आई एम श्योर यू ऑल कैन रिलेट टू इट कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि वो कैसा होगा, लेकिन वो फिर भी अच्छा हो जाता है, तो वी स्टार्ट फीलिंग गुड। दैट्स द डोपामीन दैट्स मेक्स अस फील गुड, ठीक है। तो जब भी हमने अपने आप को पॉजिटिव, जो रीइंफोर्समेंट है अपने आप को, जब हम अच्छी बातें करते हैं, आवर ब्रेन एक्चुअली रिलीजेस डोपामीन and you feel good about yourself. So you don't have to wait to act something and then to get the validation from people around you to feel good. आप अपने आप को भी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करवा के कह कर यू कैन फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और ये उन लोगों के ऊपर बहुत काम आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें लाइफ में कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि क्या कभी आपने खुद को किया है अप्रिशिएट, या कभी खुद को कुछ अच्छी बात की है? तो वो कहते नहीं, हमने खुद को भी कभी अच्छी बात नहीं की। सो द डोपामिन हैज नॉट बीन रिलीज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट आ रहा है, आप अपने आप को फेलियर फील कर रहे हैं, और इसी वजह से आप डिप्रेशन की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज डोपामिन तो इतने अरसे से रिलीज ही नहीं हुआ था। तो यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ इन अ वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव वे। और जो भी बातें आप खुद को कर रहे हैं वो सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में रोल प्ले कर रही है। अच्छा, नो व्हाट आर 8 बैरियर्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये सारी वही चीजें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। वेट, मैं थोड़ा एक मिनट पीछे जाती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज सेल्फ डिफीटिंग assumptions, ठीक है। जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, जब आपको लग रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता तो मैं वाकई नहीं करूंगा।
So stop doubting your abilities, because once you doubt, it leads to inaction. आप फिर नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता. ठीक है. Sometimes we make goals in our life that are too big for us. ठीक है. इसको हम स्मार्ट गोल्स की थेरेपी में हम उसको एज अ स्मार्ट गोल कहते हैं कि आपने बेसिकली सस्टेनेबल गोल बनाने होते हैं, मेजरेबल गोल्स होते हैं, अचीवेबल गोल्स होते हैं, रैशनल गोल्स होते हैं, टाइमली इफेक्टिव गोल्स होते हैं. आपने वो गोल्स बनाने हैं जो आप अचीव कर सकते हैं. छोटे छोटे बनाएं, जब वो अचीव हो अपने आप को अप्रिशिएट करें. अगर आप बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेंगे, हमारे पास कुछ एफएससी के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा गोल है कि मैंने अपना क्लिनिक बनाना है. अच्छी बात है, लेकिन क्या वो 6 महीने में अचीव हो जाएगा? क्या वो 3 महीने में अचीव हो जाएगा? नहीं होगा. 3 महीने में क्या अचीव होगा कि मैं टॉप करूंगी अपनी क्लास में. तो वो गोल्स बनाए जो अचीवेबल हो. डिक्लेयरिंग विक्ट्री टू सून. ठीक है. अर्ली सक्सेस कैन क्रिएट फॉल्स कॉन्फिडेंस एज वेल. अभी रिजल्ट आया नहीं, लेकिन पहले से आपने शोर मचा दिया कि मैं तो टॉप करूंगी और मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊंगी, मुझे ही प्रमोशन मिलेगी. अगर कभी कभार क्योंकि आप अपने आप से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर देते हैं, दैट समटाइम्स यू डोंट गेट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है. डू इट योर सेल्फ, ट्राई टू सक्सीड अलोन विदाउट एनी सपोर्ट एनी हेल्प. खुद करें, मेहनत करें, जो भी मेहनत करें दिल से करें. स्टॉप ब्लेमिंग समवन एल्स. अगर कभी कभार नहीं भी हो सका जो आप अचीव करना चाह रहे थे, दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे. ठीक है. एंड लास्टली ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है. लाइक आई सेड, एरोगेंस blinds you to risk and feedback. ठीक है. ट्राई नॉट टू बी एरोगेंट. अगर आपके पास बहुत कॉन्फिडेंट है भी, बहुत अच्छा पास एक्सपीरियंस है भी, जिंदगी में जो भी किया है हमेशा कामयाबी मिली है, तो माशाल्लाह आप ब्लेस्ड हैं. लेकिन कभी भी एरोगेंट नहीं फील करें, अपने आप को ओवर द टॉप नहीं जाएं. ऑलराइट, नाउ हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. ठीक है. आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है. आई होप सो. लेट्स टॉक अबाउट कि हम किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात कर ली. आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्चुअली में करें क्या. ठीक है. इसका मैं आपको जेनेरिक से ही ओवरव्यू दूंगी कि जो भी आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है, उसी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. ठीक है. कुछ लोग होते हैं कि जो एक स्किल सीख तो लेते हैं लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर किसी और स्किल के ऊपर चले जाते हैं. फिर वो थोड़ी सी सीखी, एक दफा कर ली, चलो आगे, फिर छोड़ के किसी और पे चले जाते हैं. डोंट डू दैट. फाइंड योर एबिलिटीज, फाइंड योर स्किल्स एंड स्टिक टू दैट. ठीक है. देन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक. जैसे मैंने आपको भी बताया, टेल योर सेल्फ आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन फिगर दिस आउट. बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्रैक्टिस कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. जो भी हमारी आवर बॉडी टॉक्स बिफोर वी डू. ठीक है. बात करने से पहले ही हमारी जो बॉडी है वो बात करना शुरू कर देती है. तो मेक श्योर कि आपका ओपन पोस्चर हो, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट हो, आपके खड़े होने का स्टाइल बड़ा पॉजिटिव हो, सो दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ एज वेल. ठीक है. बात करने से पहले ही आपका जो है ना, लोगों को पता चल जाता है कि ये जो बंदा आया है, ये आई है, ये क्या करने लगी है. तो मेक श्योर कि यू हैव अ वेरी, यू नो अबाउट पावर पोजेस एज वेल. एक्सेप्ट फेलियर फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग. लाइक आई सेड कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि यू फेल, इट्स ओके. बिकॉज कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन परफेक्शन. इसको लिख लें कहीं पे. कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू परफेक्शन. ठीक है. मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ मास्टरी. यू विल मेक मिस्टेक्स एंड यू विल लर्न फ्रॉम इट. ठीक है. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, ग्रोथ नहीं होगी. मेक श्योर कि इवन दो आई अंडरस्टैंड, जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो यू डू फियर अ लॉट, डर लगता है, लेकिन यही डर है जो आपको कॉन्फिडेंट होने में मदद करेगा. ठीक है. पॉजिटिव एफर्मेशंस की मैंने बात कर ली, पावर पोजेस की बात कर ली है. ठीक है. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग क्या है कि आप अपने आप को लाइक व्हाट आर यू थैंक. कभी ऐसा जिंदगी में लगे ना कि मैं बहुत फेलियर हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर पाया, nobody likes me, I have no friends, उस टाइम पे just ask yourself what I am thankful for. एंड कभी कभार हो सकता है इसका कोई जवाब ना मिले, बट अगेन आस्क योरसेल्फ. ठीक है. what I am thankful for in my life. There has to be something that I am thankful for. And this exercise will basically shift your brain from being so much negative to actually find something positive in your life. ठीक है. All right. उसके बाद क्या है जी.
माइंड बॉडी कनेक्शन, ठीक है, वही वाली बात जैसे मैंने अभी बात की कि जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका पोस्चर है, दैट आल्सो शोज अ लॉट अबाउट योर कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े होके मेक अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड देन सी हाउ आई एम एक्टिंग. बहुत से ऐसे लोग हैं, ये एक्सरसाइज मैं अक्सर करवाती हूँ, तो वो इस तरह के उनके हाथ, उन्होंने अपने ऐसे हाथ बांधे होते हैं और वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहे होते, या मुसलसल वो अपने बालों को मुसलसल मुसलसल अपने बालों को, अपने फेस को, अपने दुपट्टे को कुछ ना कुछ बार बार, दे नीड सपोर्ट ऑफ समथिंग. दैट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर ट्राइंग टू हाइड योर इनसिक्योरिटी. सो मेक श्योर कि जो भी आपका पोस्चर है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो, क्योंकि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी. ठीक है, अगर आपका मेंटली इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, आपकी बॉडी में भी, फिजिकल बॉडी में भी वो नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर स्माइलिंग, मेक श्योर कि आपका आई कांटेक्ट मेंटेन है एंड ट्राई टू बी ऑथेंटिक. ठीक है, जो भी आप चीज कर रहे हैं ना, रियल होके करें, सच्चे दिल से करें, अदरवाइज उसको मत करें. ठीक है. where is the last slide? I think the last slide है हमारी. हाँ जी. So final reflection. ठीक है, I want all of you to know that confidence is not about proving yourself. It's about remembering who you are without any performance or without any comparison. अगर कोई ऐसा बंदा है जो ग्रेजुएट होने के बाद 6 मंथ से घर बैठा हुआ है, उसने कोई जॉब नहीं की है, कोई काम नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नथिंग या आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग समथिंग टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर एबिलिटीज कि आप कर सकते हैं. ठीक है, सो एक छोटी सी फाइनल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली ट्रस्टेड योरसेल्फ? आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट थिंक अबाउट इट. ठीक है, कब आखिरी दफा आपने अपने ऊपर पूरा एतबार किया था कि हाँ, मैं, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. व्हाट डज कॉन्फिडेंस फील लाइक व्हेन इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग एनीवन? ठीक है, ये बड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं कि जब आपने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंस के बारे में क्या सोच रहे हैं. ठीक है, what needs to be unlearned for you to fully own your voice? वो सारी क्रिटिसिज्म, वो सब चाइल्डहुड की बातें, कोलीग ने कुछ कह दिया, फ्रेंड ने कुछ कह दिया, सोसाइटी जो बातें करती है, इट्स टाइम टू अनलर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट्स टाइम टू फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग यू आउट एट ऑल. ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन सी बातें, कौन सी चीजें हमें एक्चुअली में हेल्प कर रही हैं. ऑल राइट, you are not here to become someone else. You are here to return to the strength that was always yours. ठीक है, आप कुछ और बनने नहीं आए, आप किसी और को कॉपी या किसी और जैसा नहीं है आपने बनना, आप अपने लिए ही आए हैं. ठीक है, you are here to return to the strength that was always yours. So thank you for showing up today, not just to learn about confidence, but to return to the parts of yourself that always knew how to stand tall, even in silence, even when there's no one looking at you, there's no one watching you, you're not impressing anyone, you are still loving yourself the way you are. And that's it. Thank you so much. Thank you, Ms. Afra, for sharing your valuable insights with us. And thank you to our audience for participating in today's webinar. We hope you find our discussion informative and helpful. That concludes tonight's webinar. Good night, everyone. Take care. Thank you so much. It was pleasure having you here with all of you. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. I'm Guratulan here, chairperson FAPC. Madam, thank you so much for joining today. और आपकी सारे नॉलेज शेयरिंग के लिए और इतना अच्छा से सब कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए आई वुड लाइक टू पे माय रिगार्ड्स और आई विश कि आप दोबारा भी हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करें. Inshallah. I would love to collaborate. And since I think it was the first time that I did with you guys, but I really loved it. I loved the audience. I loved the participation. Engagement बहुत अच्छी थी. Everyone was fully invested. So Alhamdulillah, it was excellent being part of this webinar. All right. थैंक यू सो मच. हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें दोबारा भी मजीद अच्छे टॉपिक्स पे जो आपके अच्छी एक्सपर्टीज में हो उनके लिए दोबारा ज्वाइन करें.
Thank you. Definitely. Allah Hafiz. Allah